What would happen to her independence? Question. Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. This is what Ambedkar ji has said. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it second time? This is the caution. If you move in the direction of dividing people on the basis of caste, creed, sex and region, try to divide the people for your own narrow ends, the danger cannot be ruled out. So we have to think in terms of nation first and nation last. So he also said, it is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of castes and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will India place the country above their creed, or will they place creed above the country? This is the question, and he said, I do not know. But this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably last forever. This eventually must be all resolutely guard against all of us. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. This is what Baba Sahib said. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies the base of its social democracy. I am happy Shri Narendra Bhai Modi, who has such a background, is moving in the direction of providing not only political democracy but also social democracy. We cannot have excuses. We cannot no more blame Britishers. We are ruining ourselves, and we may be ruining ourselves. Keeping that in mind, we should recall the great ideas, thoughts given by Baba Sahib, and then move in the direction, right direction. That's my appeal to the people of the country on this occasion, because it's time for all of us to reflect upon what we are doing, what we are expected to do, and what we need to do. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you, Honorable Vice President. It's always a pleasure to hear you speak. Your words have always guided us and the country at large with the long-term vision of what Dr. Ambedkar has always said, and I quote, I like the religion that has always taught liberty, equality, and fraternity. With this quote now, I request Honorable Vice President Shri Venkaiah Naidu to release the book, Dr. Baba Sahib Ambedkar, Vyakti Nahi Sankalp, and he will hand over the first copy to the Honorable President, Mr. Ramnath Kovind. I would also call upon Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, Union Ministers Tawarchand Gehlot, Anita Parmar, who's the publisher and author of the book, Mr. Makhwana, to join. It's a very special occasion today where we celebrate the ideas and ideologies of Dr. Baba Sahib Ambedkar, and as the Vice President just pointed out, the very idea of nation, how it has to be carried forward, that is something to look forward to. His ideas, his ideologies, they've always ensured that they continue for generations and generations. It's a real honor when Vice President has handed over the first copy of this book to the President. So remember, this book is not a very exhaustive one, just 94 pages and divided into 2 chapters. The first chapter talks about the life and the history of Dr. Ambedkar, and the second chapter deals with what Prime Minister Narendra Modi's government has done for spreading the ideas of governance as far as Dr. Ambedkar is concerned. और लोगों को संवैधानिक और कानूनी ढांचे में हर व्यक्ति को समांतर अधिकार मिले, इसका भी कई जगह इस किताब में वर्णन किया गया है. Now I would request Honorable President Mr. Ramnath Kovind to address the gathering. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प, इस
पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, लोकसभा अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, पुस्तक के संपादक श्री किशोर मकवाना जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर की जयंती के दिन मैंने प्रातःकाल दिल्ली में संसद भवन में उनकी प्रतिमा पर उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा की अध्यक्षा, मंत्रीगण, सांसदगण सभी के साथ मुझे भी सभी देशवासियों की ओर से उनको नमन करने का सुअवसर मिला। उसके पश्चात महू, जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, जिसको पंच तीर्थों में एक तीर्थ शामिल किया गया, उस तीर्थ में भी जाकर बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का सौभाग्य मिला। और मित्रों, आज के दिन को मैं कुछ सुखद संयोग अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों से देखता हूँ। वो इस दृष्टि से ये जो 14 तारीख का अंक है, द नंबर ऑफ 14, बाबा साहब की जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, लेकिन सौभाग्य से मैं देख रहा था कि इस देश का राष्ट्रपति होने का जो दायित्व मुझे मिला, वो 14वां राष्ट्रपति हूँ। अब ये शायद नियति को कुछ मंजूर होगा कि वो दोनों नंबर जो हैं वो मिल गए, लेकिन एक और मुझे सुखद संयोग आज अनुभव हुआ जब मैं उनकी जन्मस्थली महू में गया। तो वहाँ पर मेरे से पूर्व जो वक्तागण थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की जयंती तो हम प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाते हैं। यहाँ पर भारत सरकार के कई मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वाभाविक है वो नरेंद्र भाई मोदी थे जो वहाँ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले राष्ट्रपति हैं जो कि उनकी जयंती के अवसर पर आए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिस संविधान की हमने शपथ ली और उस शपथ के अंतर्गत I have been assigned the responsibility to protect, preserve and defend the Constitution. The Constitution which was drafted under the leaders of Baba Saheb Ambedkar. तो मुझे लगा कि उस बात की मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि जिस संविधान की मैंने शपथ ली है, कम से कम मैं उनके जन्म स्थली पर आकर के उनके चरणों में नमन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज मैं पुस्तक का विमोचन हो गया। विमोचन करने के पूर्व और जिसको थोड़ा बहुत बोलना होता है मेरे जैसे व्यक्तियों को, तो ये पुस्तक पहले से भेज दी जाती है। पुस्तक को हमने देखा, इसलिए मैं कुछ जो पुस्तक में लिखी गई चीज़ें हैं उन्हीं पर मैं कुछ अपने विचार रखूंगा।
ये 90 पृष्ठों की ये छोटी सी पुस्तक सचमुच में गागर में सागर की तरह है। ठीक ही कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं और एक तस्वीर हजारों शब्दों से भी अधिक बोलती है। इस पुस्तक के भीतरी पन्नों में छपी पहली और आखिरी तस्वीरें तथा अन्य बहुत से चित्र ये बताते हैं कि पूर्व में गुजरात के जो मुख्यमंत्री रहे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बाबा साहब के परम अनुयायी हैं और संविधान के पुजारी भी। उस संविधान के जो डॉक्टर अंबेडकर की भारत को देन है। प्रधानमंत्री बाबा साहब के विजन को साकार करने में पूरा देश जानता है कि वो निष्ठा से लगे हुए हैं। इस पुस्तक से ये भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा उन्हीं आदर्शों को कार्य रूप देते रहे। इस पुस्तक में संकलित विचार ये भी स्पष्ट करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विजन को ठोस रूप देना आज भारत सरकार के कामकाज का एक एजेंडा बन गया है। बाबा साहब ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां आखिरी छोर पर बैठे पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, विशेषकर महिलाओं को सबके साथ बराबरी का हक और सम्मान मिले। वे शांति, अहिंसा और सौहार्द के साथ सभी मुद्दों पर समाधान करने के हिमायती थे। यही रास्ता बंधुता, समता, ममता और समरसता की भावना को मजबूत करता है। इस पुस्तक में समरसता के अर्थ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया। समभाव अर्थात बराबरी का भाव और मम भाव अर्थात अपनेपन का भाव, ये इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो उससे समरसता का भाव पैदा होता है। इस पुस्तक में ये भी कहा गया है कि आज समर की नहीं बल्कि देश में समरसता की जरूरत है। सामाजिक मुद्दों पर राजनीति करने से समाज का अहित होता है। स्वार्थ की राजनीति में समाज को समर भूमि बनाने की नुकसानदेह प्रवृत्ति पाई जाती है। जोड़ने के बजाय तोड़ने की मानसिकता काम करने लगती है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए जातिवाद से मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि जातिवाद तोड़ने का काम करता है। आर्थिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि हर प्रकार की सुख शांति के लिए सोशल हार्मनी यानी सामाजिक सौहार्द जरूरी है। इन सब बातों का इस पुस्तक में उल्लेख किया गया। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिसका कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने विस्तार से उसका उल्लेख किया कि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, पत्रकार, समाजशास्त्री और संविधानवादी थे। सबसे बढ़कर वे एक कर्मठ समाज सुधारक भी थे। हमारी बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम आज सभी क्षेत्रों पर बाबा साहब के योगदान की छाप है। सबसे बढ़कर हमारा संविधान उनकी प्रमुख देन है। बाबा साहब केवल वंचितों के नेता नहीं हैं, उनकी विरासत के साथ न्याय करना भी जरूरी है। इस दिशा में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग की तरह बाबा साहब भी एक विश्व मानव है। 100 से भी अधिक देशों ने सन 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ में उनकी जयंती मनाई थी। इस पुस्तक से ये भी पता चलता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक योगदान के लिए
एक पुरस्कार की शुरुआत की थी। उस पुरस्कार का नाम था वीर माया सम्मान। लगभग 1000 साल पहले उस समय गुजरात की राजधानी पाटन में मेघ माया नाम के एक वंचित वर्ग के वीर युवा ने लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। बाबा साहब ने इसका विवरण अपने पत्र मूक नायक के संपादकीय में भी किया। इस पुस्तक में बाबा साहब के जीवन से जुड़े पावन स्थलों के सचित्र विवरण हैं, जिसका आदरणीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री ने भी उसका उल्लेख किया। ये पंच तीर्थ हैं। महू में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि, दिल्ली में उनका महानिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि और लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम। इस प्रकार इस पुस्तक से ये स्पष्ट होता है कि डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और विचारों को प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहराई से समझा और महसूस किया तथा वे भावना के स्तर पर जुड़कर डॉक्टर आम्बेडकर के आर्थिक और सामाजिक सुधार के विचारों को साकार करने में लगे हुए। बाबा साहब के जीवन का एक, उनके जो व्यक्तित्व का एक प्रमुख पहलू जिसको मैं देखता हूं, उसका उल्लेख उपराष्ट्रपति जी ने भी किया। ये प्रसंग आता है जब देश आज़ादी के दौर से गुजर रहा था, आज़ादी के लड़ाई के दौर से गुजर रहा था। उस समय भी देश को बांटने की, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, इन सब बातों की चर्चाएं होती थी। और उस समय हमारे बहुत सारे नेतागण थे, समाज सुधारक थे, वो बातें करते थे, नहीं नहीं पहले केवल भारत की बात करिए, बाद में हिंदू मुस्लिम इन सब की बात करते हैं। बाबा साहब का एक, जैसा कि वेंकैया जी ने कहा, बाबा साहब की उससे भी एक बड़ी सोच थी। और वो कहते थे कि ये जो बांटने वाली चीजें, जो प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां उनको समाप्त करना है, केवल आज़ादी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी हासिल करने के बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हम आज़ाद होंगे, उस समय भी इन्हीं की ज़रूरत है। और इसीलिए वो कहते थे, जब सब लोग कहते थे, अधिकतर लोग कहते थे कि भाई हमारा एक अवधारणा ये होनी चाहिए, कंसेप्ट ये होना चाहिए जब लोगों के बीच में जाते हैं कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू हैं, मुसलमान हैं। पहले हम भारतीय हैं, ये कहो कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। ये कहो कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम अगड़े हैं और पिछड़े हैं। पहले हम भारतीय हैं, बाद में कहो कि मैं उत्तर भारतीय हूं, मैं दक्षिण भारतीय हूं। पहले ये कहो कि मैं भारतीय हूं और बाद में ये कहो कि मैं अमीर हूं, ये गरीब हूं, पूंजीपति हूं या मजदूर हूं। बाबा साहब उससे ऊपर थे। उनका बार बार कहना था, अपने शुभचिंतकों को कहना था, देश को कहना था। वो कहते थे नहीं, ये जो आप कहते हैं कि पहले भारतीय हैं और बाद में ये छोड़िए बात की। हम सबको एक ही अवधारणा पर जीना है, चलना है, आगे बढ़ना है। और वो अवधारणा ये है कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। ये शायद अवधारणा हमें एक जो राष्ट्र है हमारा, उसकी अखंडता को कभी विखंडित नहीं होने देगी। हमारा राष्ट्र एक रहे और उसी में हम सबकी भलाई है, देश की भलाई, यहाँ तक कि विश्व की भलाई है। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये छोटी सी पुस्तक बाबा साहब के प्रेरक जीवन तथा उनकी गहरी सोच के सभी आयामों को और उन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को भी समाहित करके पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के रूप में बाबा साहब को समझने का एक अच्छा और सरल स्रोत हम सबको उपलब्ध हो गया है। इसके लिए मैं इस पुस्तक के संपादक
श्री किशोर मकवाणा जी की प्रशंसा करता हूं। साथ ही मैं इस पुस्तक के प्रकाशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक में संकलित विचार अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचें, ताकि समरसता और सौहार्द के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की भावना और मजबूत बने। आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, मैं चाहूँगा कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सरकार हैं, बहुत सारे अंबेडकर फाउंडेशन है जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मुझे लगता है कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमारे विश्वविद्यालय हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, न जाने कि अनगिनत संस्थाएं हैं जो कि बाबा साहब के बारे में अभी तक सही उनका जो समग्र जीवन है उसको देखने, समझने और अपने जीवन में ढालने का जो एक मौका इस पुस्तक से मिलेगा, वो मुझे लगता है अद्वितीय है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस पुस्तक की जो प्रथम प्रति है वो मुझे भेंट की गई। मैं उसके लिए प्रकाशक और लेखक का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। Thank you, Honorable President.